Good morning, student. So, in the previous class, we finished the first lesson, that is the real number. Now, the second lesson is polynomial. Lesson number 2, polynomial. You know that what is meant by the polynomial and how the polynomial is identified. ये हमने पढ़ा है 9th standard में. Because the same lesson is in the 9th standard also. So in that 9th standard we already learned the factorization of the polynomial, find the factors of the polynomial, find the zeros of the polynomial, division of the polynomial, multiplication of the polynomial, addition of the polynomial, subtraction also. Means all these things we already learned in the 9th standard. We already learned. सभी के सभी हमने लर्न किया है 9th स्टैंडर्ड में. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे इस लेसन में देखेंगे कि what is the graphical representation of the polynomial. Graphical representation. and इसमें सबसे पहला तो this lesson is divided into 3 parts. The first is graphical representation. Graphical representation of polynomial. एंड पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, वो हम ध्यान देंगे. आफ्टर दैट सेकेंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, zeros of polynomial and its very frequency and its coefficient zeros of polynomial और coefficient, इनमें क्या रिलेशन है? What is the relation between the zeros of the polynomial and the coefficient of the polynomial? वो देखेंगे. तीसरा पार्ट देखेंगे यहां पे डिवीजन. क्या देखेंगे? अरिथमेटिक डिवीजन, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, so these 3 parts we have to discuss in this lesson. The first part is graphical representation of the polynomial. The second part is the zeros of the polynomial and the coefficient, its coefficients also. And the third is division of the polynomial. Okay? So these 3 terms, these 3 concepts we have to discuss in this lesson. Got it? Now, before we start the lesson, we can identify, we can elaborate the definition, or we can say that the general form of the polynomial. Definition or general form of the polynomial. The general form of the polynomial is a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus dot 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 a n x to the power n. So this is of your general form of the polynomial. You know that. What is meant by the monomial, binomial, trinomial and polynomials? आपको पता है, एक टर्म से तो मोनोमियल है, 2 टर्म से तो बाइनोमियल है, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल बोलते हैं, और आफ्टर दैट पॉलिनोमियल्स बोलेंगे. क्योंकि 4th टर्म है, 4 टर्म्स है तो उसको पॉलिनोमियल ही बोला जाएगा, कोई और नाम नहीं बोल सकते हम लोग. ओके, सो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और साथ में पॉलिनोमियल. तो मोनोमियल इज आल्सो वन ऑफ द पॉलिनोमियल. उसको तो स्पेसिफाई किया गया है क्योंकि एक टर्म है तो मोनोमियल बोला है उसमें, मगर है वो एक पॉलिनोमियल. 2 टर्म है तो बाइनोमियल बोलेंगे, मगर है वो क्या? पॉलिनोमियल. 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल है, मगर है क्या? वो एक्चुअल में पॉलिनोमियल है. सो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऑल दीज आर नथिंग बट द पॉलिनोमियल है, मगर टर्म्स पर्टिकुलर है इसलिए हमने उसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बोला. ओके, सेकंड थिंग, ये हो गया पहली बात. दूसरी बात, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल. इट इज डिपेंड ऑन द पावर, इट्स पावर. पावर मींस उसका ये क्या है, क्या उसके पावर्स क्या है, और उसके कोएफिशिएंट्स तो ध्यान में रहेंगे अपने, मगर एक्सपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है. एग्जांपल के तौर पे p of x is equals to x square plus 2x plus 3. This is one of the polynomial. Or we can say that p of x is equals to
x square plus 3, or we can say that p of x is equals to x square plus 2x. Got it? In all these cases, you know that what is meant by the degree. The degree of the polynomial is nothing but the highest power of variable. वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वही उसका क्या रहेगा, डिग्री. और डिग्री जितना है उससे एक ज्यादा क्या रहते हैं, टर्म्स रहते हैं. मींस स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसीडर करेंगे तो, ये फॉर्म में कंसीडर करेंगे तो मींस डिग्री यदि 2 है तो नेचुरली वहां पे कितने टर्म्स रहेंगे, 3 टर्म्स रहेंगे. डिग्री यदि 2 है तो कितने टर्म्स रहेंगे, 3 टर्म्स रहेंगे. मगर यहां पे दिए कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है. तो सेम पॉलिनोमियल कैन बी रिटन लाइक दिस, x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3. ऐसा भी लिख सकता हूं मैं. या फिर यहां पे 2 ही टर्म दिख रहे हैं तो तीसरा भी टर्म होना चाहिए. सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0, दिस इज ऑफ योर थर्ड टर्म. ओके, और वी कैन से दैट 0x टू द पावर 0. सो दिस इज ऑफ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये इसमें पावर आया है 2. So if the degree of the polynomial is 2, that is called as a quadratic. If the degree of the polynomial is 1, that is called as a linear. And if the degree of the polynomial is 3, that is called as a cubic polynomial. ये हो गया quadratic polynomial का एग्जाम्पल. अब मैं यहां पे दे रहा हूं आपको cubic polynomial के एग्जाम्पल. p of x is equals to 2x to the power 3 plus 4. This is the cubic polynomial. p of x is equals to 5. This is of your constant polynomial. इसको क्या कहेंगे, constant polynomial, because 5 into 1 है, and this 5 into 1 is called as a 5 into x to the power 0. And you know that x to the power 0 is always equals to 1. x to the power 0, y to the power 0, a to the power 0, 5 to the power 0, any number to the power 0 is always equals to 1. तो ये जो नंबर है 5, ये कांस्टेंट है, इसीलिए हमने इस पॉलिनोमियल को क्या कहा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैविंग अ डिग्री 0. जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सो दिस p of x is equals to 5. It is a constant polynomial because there is no variable. वहां पर वेरिएबल नहीं है. तो वेरिएबल नहीं, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है. एग्जांपल के तौर पे a0, ओनली a0 है वहां पर, a1x नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज़ द डिग्री इज 2. दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज़ द डिग्री इज 3. दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिकॉज़ द डिग्री इज 0, दैट इज no variables is there. And another is p of x is equals to x plus 3. So degree of this polynomial is 1. So this is of called as a linear polynomial. Linear, quadratic, cubic, constant. Constant, linear, quadratic, cubic. This is of your which polynomial? Linear. This is of your cubic. This is quadratic. And what is this? This is the constant polynomial. Constant, linear, quadratic, cubic. Cubic, quadratic, linear, constant. Understood? Understood हुआ? Now you can find, you can take the examples of linear, quadratic, cubic and constant polynomial. We have to take 5 example. आप खुद ही लेके देखिए, खुद ही लेके देखिए कि कौन से एग्जाम्पल में हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे, कौन से एग्जाम्पल में क्यूबिक बोलेंगे, कौन से एग्जाम्पल में लीनियर बोलेंगे, कौन से एग्जांपल में हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे. ये आप 5 एग्जांपल लेके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा ये बात. ठीक है, तो आपको इसको मैं मिटा देता हूं. नाउ हियर वी कैन सी द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल. एन एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus dot 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 a n x to the power n, x to the power n, not 3, it is x to the power n, where n is non-negative integer. non-negative integer का मतलब क्या है, वो या तो 0 है या फिर पॉजिटिव है. तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर को सेट्स में आपने देखा होगा n is greater than or equals to 0.
नॉन निगेटिव का मीनिंग ही होता है कि निगेटिव नहीं है। नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं है। निगेटिव नहीं है तो क्या है, फिर पॉजिटिव है और जीरो है। नंबर लाइन क्या शो कर रहे हैं आपको, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, इधर -1 -2। ओके, तो निगेटिव नहीं है मींस ये नहीं है, तो होगा क्या, या तो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकते हैं। ओके, सो n is always non-negative integers and this is a0, a1, a2 ... an are real number। रियल मींस क्या, या तो वो रैशनल भी हो सकते हैं या फिर इरेशनल भी हो सकता है। मींस a1 का वैल्यू √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 5/6 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। मींस इट इज ऑलवेज अ रियल नंबर। इतना ध्यान में आ गया। दिस इज ऑफ योर जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ वी विल मूव टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, that is geometric representation of polynomial। geometric, this is of your general form of the polynomial। okay, हाँ, तो geometric representation now what is the geometric representation means polynomial को हम लोग ज्योमेट्री में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 9th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बता रहा है आपको, ये एक ग्राफ है जिसमें आपके पास में x एक्सिस और y एक्सिस है। यहाँ पे कहीं तो भी 0 दिख रहा है, यहाँ पे इधर पॉजिटिव नंबर है, इधर निगेटिव नंबर है, ऊपर में पॉजिटिव है, नीचे में निगेटिव नंबर है। ओके, ये शो कर रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्टेशियन प्लेन। उसको क्या कहा हमने, कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन मींस द सिंपल पेपर जो था, दिस सिंपल पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट बिकॉज ऑफ द 2 लाइन, one is the vertical and another is the horizontal line। so because of that 2 line, this plane is divided into 4 part, each part is called as a quadrant। so this is the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant। अब इसी लेसन में, यानी वो जो लेसन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी लेसन में आपने ये भी देखा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + 3 = 0, ये भी देखा था, या फिर x + y = 3, ये भी देखा था आपने, y + 5 = 0, ये भी देखा था आपने। तो उसमें क्या देखा गया है कि यदि लीनियर है तो इसका जो ग्राफ रहेगा x = -3, यदि यहां पे है तो ग्राफ आपका इस तरह से मींस दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन x + 3 = 0 which is parallel to the y axis and intersect x axis at point -3। okay, means this is the graph, this is called as a graphical representation of this equation। अब हमारे पास में इक्वेशन ना होते हुए क्या दिख रहा है आपको, पॉलिनोमियल दिख रहा है। तो पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p of x। वैसे तो p of y भी रहता है, बट वी कैन कंसीडर एज अ p of x = x² + 2x + 3। as this is of your quadratic equation, quadratic polynomial, so quadratic है तो इसका जो ग्राफ आएगा that is not a straight line, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आने का केवल हक है लीनियर पॉलिनोमियल को। स्ट्रेट लाइन लाने का हक केवल किसको आ रहा है, लीनियर को, मगर ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। और यदि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑलवेज कर्व। ये कैसा आएगा, कर्व आएगा। वही यदि यह रहेगा x = p of x = x + 3, तो नेचुरली ग्राफ किस तरह से आने वाला है आपका, इस तरह से आएगा, -3 यहां पे स्ट्रेट लाइन बनेगा। मींस लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन है और क्वाड्रेटिक है तो इस तरह से कर्व आएगा। ओके, हो सकता है कि क्यूबिक यदि है आपका, यानी ग्राफ यदि आपका क्यूबिक है, p of x = x³ + 2x + 3 इन दिस वे, हो सकता है कि ग्राफ आपका इस तरह से आए, लाइक दिस, ये भी आ सकता है, या फिर आपका इक्वेशन इस तरह से है। और एक इक्वेशन बना लेता हूं मैं यहां पे,
P of x is equals to y plus 3 मीन्स यहां पे x है ही नहीं, है क्या x? नहीं है। इसका मतलब यहां पे ये जो ग्राफ आने वाला है, ये ग्राफ इस तरह से आएगा, सॉरी माइनस है तो नीचे जाएगा ये ग्राफ, ऊपर नहीं आएगा। -3 यहां पे है तो ये हो गया उसका ग्राफ y plus 3 is equals to y plus 3। Got it? अब ये तीनों केसेस में हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल intersect x-axis in how many points? In how many points? यानी कितने पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करता है x-axis को, that is the number of the zeros। अब ये zeros क्या है, पहले उसको आइडेंटिफाई कर लो आप। ओके, zeros of the polynomial, you know that, zeros of polynomial दिख रहा है? So zeros of the polynomial is what? That is p of x is equals to x plus 3. It means p of x means 0 is equals to x plus 3। 9th स्टैंडर्ड में आपने निकाला है। यहां पे यदि मैं x का वैल्यू कितना रख रहा हूं, p of -3 निकालेंगे तो क्या मिलता है? -3 plus 3 that is of equals to 0 मिलेगा। मींस आपका क्या बोला मैंने, x is equals to -3 is 0 is zeros of the polynomial, ये 0 है। ओके, zero of the polynomial मींस यदि मैं x की वैल्यू -3 रख रहा हूं तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बनता है? 0। सो दैट इज कॉल्ड एज द zeros of the polynomial। मींस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0। मींस p of -3 इज इक्वल्स टू क्या मिला? 0 मिला। सो -3 इज द zero of the polynomial। वैसे ही zero of the polynomial इन केसेस में ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल मींस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा उतने रहेंगे उस पॉलिनोमियल के जीरोस। जैसे यहां पे ग्राफ कितने जगह पे इंटरसेक्ट किया? 2 जगह पे। सो हियर 2 zeros। यहां पे ग्राफ ने कितने जगह पे इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को? 3। सो देयर आर 3 zeros। यहां पे एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट किया? एक भी नई जगह। इसका मतलब नो जीरो, कोई जीरो नहीं। समझ में आ गया? ध्यान में आया? अब तीसरा एक एग्जांपल और एक एग्जांपल देता हूं मैं यहां पे। ये आ गया आपका ग्राफ इस तरह से, ये हो गया कर्व। अब एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट किया उसने? एक ही पॉइंट में। एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट किया ना, ये यहां पे इंटरसेक्ट किया ना 0 पे, ओरिजिन पे। तो यहां पे जीरोस कितने हो गए? कितने जीरोस हो गए? ओनली 1 0। ओके, नाउ यू कैन आइडेंटिफाई हाउ मेनी जीरोस द ग्राफ शोज। अब यहां पे आप लोग बताएंगे मुझे, ये आ गया मेरा पहला डायग्राम, ये हो गया दूसरा डायग्राम, ये आ गया तीसरा डायग्राम, ये चौथा डायग्राम हो गया, ये पांचवा डायग्राम, and this is the 6th diagram। okay, clear? Now you can tell me how many zeros are here? 3 zeros, correct? 1 2 3। यानी एक्चुअल में ये कौन सा पॉलिनोमियल होना चाहिए? क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 जीरो है ना, जितने पावर उतने जीरो, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो। यानी x का वैल्यू ही लिखे होते ना हम लोग, x का ही वैल्यू कंसीडर करेंगे ना। तो x स्क्वायर है, इसका मतलब x के 2 वैल्यू आने वाली है, बराबर? तो x क्यूब है तो x की 3 वैल्यू आएंगी। x टू द पावर 4 है तो यहाँ पे 4 वैल्यूज आएंगी। हो सकता है कि वो 4 वैल्यूज में से 2 वैल्यू सेम हो, ये भी पॉसिबल है। तो आप तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो पावर 4 है मगर यहाँ पे तो 3 ही वैल्यू आई। अरे बाबा 3 नहीं, तीनों डिफरेंट है मगर एक जो वैल्यू है वो तीनों में से किसी एक के बराबर है, इसीलिए वो लिया नहीं है, बराबर? तो यहां पे देखिए 3 zeros हो गए। हाउ मेनी zeros are here? 2 zeros। okay, this is the first, this is of your second। how many zeros are here? only 1 zero। how many zeros are here? there is no zero, कुछ भी नहीं है। okay, how many zeros are here? 1 2 3 4 4 zeros are here। okay, now here how many zeros are here? only 1।
means you can identify how many zeros can be find out by using the graph of this polynomial. Understood? इतना समझ गए? अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट करना है। कैसे? आपको देखना है कि जीरोस कितने हैं पॉलिनोमियल में, जीरोस कितने हैं वो आपको तय करना है। तो आप तय कैसे करेंगे? Polynomial, the graph of the polynomial intersect in how many points in the x-axis to the x-axis. x-axis को polynomial ने कितनी जगह intersect किया है उसको ढूंढना, means the zeros of the polynomial उतने रहेंगे उसके number of zeros. Understood? So you have to complete exercise 2.1. कौन सा exercise complete करना है आपको? 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ग्राफ निकालना है और उसके नीचे लिखना है हाउ मेनी जीरोस आर देयर। ग्राफ निकालना है उसके नीचे लिखना है कितने जीरोस वहां पे है। ओके, सो